علم و ادب سے جن کا زندگی بھر لگاؤ رہا، جن کا شمار دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے، علامہ کہلاتے ہیں۔ دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کی سادگی، شرافت نفس اور اخلاق کی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا۔ ان کو پنجابی، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ وہ باشعور اور باصلاحیت شاعر تھے۔ اردو فارسی کے مشہور اعلیٰ پایہ شاعر تھے۔ ان کے شعری مجموعوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی ایک نظم شکوہ جواب شکوہ بہت ہی مشہور اور مؤثر انداز میں پیش کی گئی ہے۔ فارسی میں بھی شاعری کے کئی مجموعے ہیں۔ وہ زندگی کو بامقصد، باغیرت، باعمل اور خودی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتے رہنے پر بہت ہی زیادہ زور دیتے تھے۔ بات ہو رہی ہے شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال کی۔ آپ سبھی کا میری کلاس میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ ویسے کہا گیا ہے کہ پہلے سلام پھر کلام۔ ہم کلام کی کچھ چھوٹی چھوٹی کلیاں پہلے بکھیرتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں، اس کے لیے آئی اپولوجائز۔ تو کلاس 10th ہے، سبجیکٹ اردو ہے، ٹاپک ہے جگنو، نظم بائی علامہ اقبال، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز، خاص کر میرے تو بڑے فیوریٹ شاعر ہے وہ۔ تو پیج نمبر ہے 203 سے 207 تک، اور سوری یہ 22 جون ہے، پہلے اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے نا، 22 جون۔ اوکے، تو نظم جگنو ہے، تشریح ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں۔ ہم نے یہ کیا کل یہاں تک کیا نا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، یہ کل ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے دوسرا پیج جو اس کا ہے، پیج نمبر 204 پہ گل کو، ہاں یہاں، ویری گڈ، یہاں ہیں، رنگین نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، گل کو زبان دے کر۔ پہلے اس کو کریں گے، کیا کریں گے، فلائٹ موڈ پہ، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو رنگین نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، گل کو زبان دے کر، کیا کیا، گل کو زبان دے کر، اس کو میں نے کیا کیا، سیکھیں گے اور 2-3 سالوں میں سیکھتے جائیں گے۔ رنگین نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، اور کیا ہے، نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو رنگین نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، رنگین رنگدار، نوا ہو گیا آواز، یعنی دل کو خوش کرنے والی آواز، تو رنگین نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، مرغ کا جمع، بے زباں جن کی یعنی کل۔ تو اقبال اس نظم کے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، قدرت نے بے زبان جانوروں کو کتنی خوبصورت آوازوں سے نوازا ہے، اسی طرح پھولوں کو مہک اور خوبصورتی ادا کر کے خاموشی سے اپنا حسن بیان کرنا سکھایا ہے۔ تو اور کیا فرماتے ہیں، خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی سریلی آوازیں دی اور پھول کو زبان دی، مگر ساتھ ہی چپ رہنے کی تعلیم دی، نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ شفق غروب آفتاب یعنی غروب سورج کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی، اس کو کچھ کہتے ہیں اور بھی۔ تو اقبال اس نظم کے شعر میں فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ وقت شفق کا نظارہ نہایت حسین و جمیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پری سرخ کپڑے، لال کپڑے پہنے ہوئے دیدار دے رہی ہو۔
सूरज गुरूब होने से शफ़क़ के नज़ारे होते हैं, फिर अंधेरा छा जाने से जुगनू परी की तरह चमकता है। सूरज गुरूब होते वक्त शफ़क़ का नज़ारा इस कदर दिलकश होता है जैसे एक जीती जागती परी सुर्ख लिबास पहने हुए हो। रंगीन किया सहर को बांकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम को आरसी दी। बांकी हो गया बोली बाली प्यारी सजेली, आरसी हो गया या तिस्मनो क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी जिसमें वो क्रांक होता है, क्रांकल अंगूठी जिसमें वो होता है नगीना, तो वो जेवर जो औरतें हाथ के अंगूठे में पहनती हैं इसमें शीशा जुड़ा होता है। तो नज़म के इशार में इकबाल फरमाते हैं जुगनू की बदौलत सहर इस कदर रंगीन और ताज़ा होती है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सुर्ख रंग का लिबास पहने हुए, इस पर शबनम के जेवर सजाए हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल इस शार में फरमाते हैं सुबह अपने आबो ताब से नमूदार हो जाती हैं जैसे कोई दुल्हन सज संवर कर शबनम के जेवरात लगाए हुए हों। साया दिया शजर को परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। तो बेकली बेकरारी बेचैनी। तो इस नज़म के शार में इकबाल फरमाते हैं अल्लाह ने दरख्तों को साया, साया हो गया छाँव, अल्लाह शजर को दरख्त, अल्लाह ने दरख्तों को छाँव दी और परवाज़ दी हवा को परवाज़ अता की। इस तरह पानी को रवानी अता की, पानी की रफ्तार और उसकी लहरों में बेकरारी रख कर हरकत दी। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ खूबियाँ दी हैं। दरख्त को साया दिया जो गर्मी में लोगों को ताज़गी बख्शता है, हवा को परवाज़ दी जिसे ठंडक पहुँचती है, और पानी को रवानी व तशफ़ी हो गया कामनेस कूलनेस और इसकी मौजों में हरकत पैदा की। खुदा ने दरख्त को छाँव करने की खूबी दी कि ये कड़कती धूप में साया मैसर करवाता है। हवा को परवाज़ की सलाहियत है, पानी में ये खासियत है कि वो रवां दवां रहता है। इसमें पानी पैदा होने वाली मौजें जो बेचैन रहती हैं, इज़्तिराब में रहती हैं। ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। इम्तियाज़ हो गया फ़र्क। तो शायर मशरिक़ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं किस में, इस नज़म में, नज़म का नाम क्या है, जुगनू, कि तमाम मखलूक़ात के लिए दुनिया का दिन दिन और रात, दिन तमाम मखलूक़ात के लिए दुनिया का दिन दिन और रात रात हुआ करती, जबकि इसके बरक्स यानी कंट्ररी क्या है, जुगनू के लिए उसका उलट है। ये सबब इस वजह से कि अल्लाह ने इसे एक अलग चीज़ से नवाजा, यानी कि ये सानी खतर दोस्त तशन खतर रात, हमारे लिए हम चमकते हैं दिन को, वो चमकते हैं रात को। तो अल्लामा इकबाल क्या और फरमाते हैं, अल्लाह ने चीज़ों में इम्तियाज़ पैदा किया, जो हमारे लिए रात होती है वही जुगनू के लिए दिन होता है। यानी इम्तियाज़ के बावजूद भी अल्लाह ने हमारे लिए एक ही ज़मीन मुकर्रर की है जिससे हमें इत्तेहाद और भाईचारे का दर्स मिलता है। गोया मिलजुल कर रहने का उसूल खुदा का मुतअय्यन यानी तअय्युन करदा उसूल है, और इस ज़ाहिरी इम्तियाज़ और इख्तिलाफ में भी इत्तेहाद और यकजहती का उन्सुर मौजूद है। ये लास्ट है शायद, हाँ नहीं अभी लास्ट बट 1 नहीं, अभी तो बहुत है, अभी तो 2-3 हैं। हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। हुस्न हो गया खूबसूरती, अज़ल हो गया वो ज़माना जिसकी कोई इब्तिदा न हो। झलक यहाँ इस वना शक अज़लई उठवी, झलक परतो सुखन कलाम गुंचा बिन खिला फूल, कली जिसको कहते हैं। चटक हो गया फूल खिलने से जो आवाज़ पैदा होती है उसे चटक कहते हैं। ज़्यादा म्यूट मिठ्या पर जे टासा कड़ा चटक। तो अल्लामा इकबाल इस नज़म के शार में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने कायनात के हर ज़र्रे में अपने जलवे रखे हैं और ये ज़माने अज़ल से मौजूद हैं। देखो अल्लाह ताला ने इंसान में कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत दी है, इसी तरह फूलों की कलियों में चमक दमक व चटक रखी है। तो अल्लाह के हुस्न की झलक हर चीज़ में मौजूद है। इस दुनिया में जो भी चीज़ कायम है उसमें कोई ना कोई मुनफरिद यानी कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी है। जहाँ फूल की कली को चटक दी है वही इंसान को हैवान नातिक बनाया है, यानी इसको बोलने की कुव्वत अता की है। कोई चीज़ बेकार नहीं है। ये चाँद आसमां का शायर का दिल है गोया, यानी चाँद के दिल को किसे मुशाबे, तो शायर के दिल से इसको कंपेयर किया है। वहाँ चांदनी है, वहाँ चांदनी है, यहाँ दर्द की कसक है, तो कसक हो गया हल्का सा दर्द। तो इस शायर में क्या फरमाते हैं, इंसान का दिल चाँद जैसा है, जिस तरह चाँद से चांदनी है उसी तरह इंसानी दिल में दर्द की कसक मौजूद है। तो ये चाँद शायर के दिल की तरह है, चाँद में रोशनी है, शायर के दिल में दर्द है। तो अल्लामा इकबाल चाँद का इंसान के दिल से मुवाजना करता है। चाँद में चांदनी है, दिल में दर्द की कसक मौजूद है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए है वरना नगमा है,
इस पे देखेंगे बुक पे ताकि पूरा अच्छी। हाँ, नगमा है बुए बुलबुल, बू फूल की चहक है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, यहाँ क्या है इसको अंडरलाइन भी करेंगे चाहे हमें टाइम भी लगे। यस, अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना नगमा है बूए बुलबुल, बू फूल की चहक है। तो इस नज़म के शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगरचे बुलबुल और फूल के अंदाज़े गुफ्तगू अलग है, यूँ तो बुलबुल फूल पर फरीफ्ता है, आशिक है, उस पर फ़िदा है, तो नगमा से वो क्या करता, फरीफ्ता होकर नगमा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और फूल अपनी खुशबू से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो क्या होता है, अल्लामा इकबाल नज़म जुगनू के शार में फरमाते हैं, अल्लाह ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ अवसाफ़ क्वालिटीज़ दी है, इनफरादियत दी है, ये मुख्तलिफ़ होके भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ नहीं हो सकती क्योंकि ये तमाम अवसाफ़ अल्लाह के ही दिए हुए हैं। फिर ये कैसे अलग हो सकते हैं? बुलबुल को दिलफरीब आवाज़ दी है, फूलों को खुशबू दी है, ज़ाहिरी तौर पर ये तो अलग अलग है मगर हकीकत में एक ही है। तो कसरत में हो गया है वहदत, ये लास्ट बट वन है। हाँ, कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी पोशीदा हिडन। तो जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। तो इकबाल इस नज़म के शेर में इरशाद फरमाते हैं, वहदत में ही कसरत का राज पोशीदा है, जुगनू की रोशनी और फूल की महक दरअसल एक ही चीज़ है। तो दुनिया और दुनिया की रंगीनियों पर गौर करे तो हर चीज़ में कसरत में वहदत का राज पोशीदा है, वहदत का राज पोशीदा है। और क्या है, जुगनू की चमक और फूल की महक दरअसल एक ही चीज़ है। ये तवज़ीहात में भी लिखा है कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़म जुगनू में वहदत में कसरत का राज समझाया गया है। तो ये लास्ट है, इसको मक्ता कहते हैं। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जब कि पिन्हा खामोशी अज़ल हो, पिन्हा पोशीदा हंगामा शोरिश लड़ाई झगड़ा अज़ल, वो ज़माना जिसकी कोई इब्तिदा न हो। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, सवालिया अंदाज में इस्तिफ़हामी अंदाज से पूछते हैं कि जब अज़ल से हर शय में अल्लाह ताला की वहदानियत का राज पोशीदा है तो क्यों कर ये दुनिया लड़ाई व झगड़ों का मस्कन बन गया है। अगर कसरत में वहदत मौजूद है, वो कहते हैं इंडिया वाले आमतौर पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि असल में है नहीं। तो अगर कसरत में वहदत मौजूद है और दुनिया की हर चीज़ से खुदा की झलक नुमायाँ है तो फिर क्यों झूठे इख्तिलाफात झगड़ों का सबब बने। इकबाल कसरत में वहदत के राज पर से पर्दा उठाते हुए बनी नौ इंसान को इत्तेहाद व यकजहती और अमन का पैगाम देते हैं और दावत गौर व फिक्र भी देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, नज़म जुगनू का खुलासा मुख्तसर अल्फाज में लिखिए, फिर तशरीह कीजिए। फिर है, शायर ने क्यों कहा है हुस्ने अज़ल, यहाँ है तशरीह कीजिए। रंगी नवा बनाया मुर्गान बेज़ुबां को, यहाँ ज़ुबां लिखा है, कुल को ज़ुबान देकर इसको ठीक करेंगे। और है एक और क्वेश्चन है, क्या है, हाय एक और क्वेश्चन है कि वहदत में कसरत से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन अशार में तशबीह तलाश कीजिए, सिमिलीज, हमें फाइंड आउट द सिमिलीज इन दीज, क्या है, स्टैंजा वगैरह वगैरह। तो और क्या है, हाँ ये कल करेंगे, ठीक है ना, ये कल, ये भी कल, यहाँ तक हमने किया। तो चलो तवज़ीहात थोड़ा सा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया को हर छोटी बड़ी चीज़ को खुसूसियतों से नवाजा है। जुगनू हो या परवाना, चाँद हो या बुलबुल, फूल हो या शबनम, कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। मखलूक़ात को अमन अमान और अख़वत के लिए पैदा किया है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़म जुगनू में वहदत का राज समझाया गया है। इस नज़म में खूबसूरत मिसालें दी गई हैं और काबिल गौर तशबीह भी। तो ये दो जो ये पेजेस है, आपको पेज नंबर 203 एंड 204 जो आपकी बहारिस्तान उर्दू की 10वीं किताब है, ये हम पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। उम्मीद करेंगे आप ये पेन डाउन, आप ये राइट डाउन करेंगे अपनी फेयर नोट बुक पे और इसको लर्न करेंगे, इसको समझेंगे और इकबाल की जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, तालीमात हैं, उन पे गौर करेंगे, उन पे अमल करेंगे और इकबाल की तरह क्या बनेंगे, शाहीन का जहां और है और क्या बोला है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।